ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So basically I'll explain in brief that the topic which I'm going to take, like in which category it will come, right, and how it is going to help us. So basically this actually when we were in voice, so this was one of the camp, right? So there are different camps like Sankalpa, Spurti, Utkarsh, Nishtha, and in between there is a small camp called SRCGD camp, right? So SRCGD camps का मतलब है कि S for service, R for respect, C for care, D for SRC, yeah. C for care, G for gratitude, and D for dependence on Guru and Shastra. So ये पूरी एक सीरीज है, तो ऑलमोस्ट आई थिंक ये 2 दिन का एक कैंप होता है, स्मॉल कैंप बट वेरी पावरफुल। सो मोस्टली आई थिंक कम से कम 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे यहाँ पे। सो आज जो भी इसके रिलेटेड होगा वो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। इंट्रोडक्शन में भी इंट्रोडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन का भी काफ़ी पावरफुल है। इंट्रोडक्शन मीन्स ओवरव्यू कि हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प अस, SRCGD lecture series, how it is going to help us. So basically when I was in the voice, so we had a camp, SRCGD camp in Pandharpur. Radheshyam had given all the series and all the lectures from SRCGD camp, and we had a drama also. So to understand, we will try maybe probably next week we can have a small skits, a small drama among the base devotees, so that we can understand very easily. So first today what I'll be telling about the introduction part, right? So SRCGD. So as I told that SRCGD means S for seva, R for respect, C for care, G for gratitude, and D for depending on Krishna and Krishna and Sadhu Sangha, or depending on Krishna and Shastra mainly. So what exactly SRCGD means and how it is going to help us, right? So basically अगर मैं बात बताऊँ तो SRCGD जो है this is the scale of humility, right? Scale of humility or parameters of humility. If somebody wants to know कि मैं कितना humble हूँ, और सिर्फ humble does not mean कि only going down obeisances, right? So humbleness means if somebody is humble, it means Radheshyam says that like humility does not mean like only going down to the devotee. So it is not only external, right? It is going down our ego as well, correct? So ये self test है devotees के लिए, like अगर if somebody wants to know that whether I am sufficient enough humble or not for doing services, or like sufficiently enough humble or humility means basically bowing down our ego. Again I am stressing on this point. Bowing down our ego actually means submissive means to change the perception, ready to change the perceptions. If the counselor or if the authority says, or if the senior devotee, even in the base, if somebody says ki, okay
प्रभु दिस हैज़ टू बी करेक्टेड, और ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए। कोई सेवा है तो SRCGD वो तो अलग अलग फैक्टर्स है, सिर्फ सेवा के लिए कैसे हम लोग देखेंगे, रेस्पेक्ट कैसे होनी चाहिए, केयर कैसे होनी चाहिए, वो तो पूरे अलग अलग 5 फैक्टर्स है जो एक्रोनिम है, वो तो देखने ही वाले हैं। बट ओवरऑल SRCGD जो लेक्चर्स है, जो वट एवर वी आर गोइंग टू लिसन, सो दिस इज स्केल ऑफ ह्यूमिलिटी, लाइक, और ये होनी चाहिए, करेक्ट ना? एवरी डिवोटी, वी द डिवोटी मस्ट नो दैट व्हाट इज, लाइक, हाउ मच वी आर हम्बल, राइट? मन ही मन हमको खुद से पूछना चाहिए, वी शुड टेस्ट आवरसेल्फ कि सच में हम हम्बल हैं, और इट्स जस्ट शो ऑफ, लाइक समटाइम्स to please the devotees we try to become humble. Are we really humble, or are we really, like Radheshyam Prabhu says that bowing down of his senses, yeah, this is a humbleness, but actual humbleness comes when, like, bowing down your ego, simple. So this is very simple. Like, humility does not mean only bowing down. Humility means bowing down or ego. Humility means also, like, which type of a speech and how is your behavior towards the devotee, dealing with the devotee. So Prabhuji was saying that one story, a very famous story, and it's real, right? कि there was a church, right? Church जो होता है ना, Christians के लिए, और that church was, very very flourishing. Many celebrates, many monks, many brahmacharis, like were staying in the temples. बहुत सारे ब्रह्मचारी थे, है ना? Many devotees were coming from the outside, और it was so much flourishing. बाहर के ऑडियंस भी बहुत आते थे, पब्लिक भी आती थी वो चर्च में, है ना? So there is a post, like in our ISKCON we have like a GBC, है ना? फिर टेम्पल प्रेसिडेंट, उसके there are varieties of posts, right? So in church also there is something called Rabba. So Rabba is equivalent to GBC, and there is something called Pop or Abbot, उसमें भी पोस्ट है. तो this is like a temple president of the church, right? तो so एक समय था कि what time, like, temple was, that church, not temple, that church was very very flourishing. बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बड़ा गार्डन था, बहुत बड़ा कैंपस था, बाहर के डिवोटीज के लिए आने के लिए काफ़ी बड़े प्लेसेस थे, दे कैन एंजॉय, दे कैन रिलीश, राइट? Everything was, going on very nicely. But at some point of time, what happened at अचानक जो है many brahmacharis left the church, है ना? मतलब बाहर चले गए छोड़कर, और फिर वो घटते 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 कितने बज गए, 4 से 7 डिवोटी और मॉन्क्स से सेलिब्रेट्स जो ब्रह्मचारी थे, चर्च ब्रह्मचारी, क्रिश्चियन ब्रह्मचारी, सो लेफ्ट 4 से 5 बजे. सो मीटिंग वाज देयर बिटवीन GBC एंड टेम्पल प्रेसिडेंट, और व्हाट वी से रब्बा एंड उनकी भाषा पॉप, राइट? दिस इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग, एंड दिस इज रियल स्टोरी प्रभुजी आर टेलिंग. सो जब मीटिंग था तो Rabba and some many senior devotees, they do not know the interior things when the particular temple authorities, or like we can consider from the voice or base, right? Let's assume the base in charge Prabhuji comes, right, or brahmachari जिनके भी अंडर में दिया गया वो आते हैं, और he is telling everything, अरे कितना अच्छा है, flourishing and everything is going on, but some OC is there or some project manager is there. There is a meeting going on between project manager and the Prabhujis, who is the in charge for here. So Prabhuji is seeing only like, okay, preaching is going on very nicely, and devotees are practicing bhakti very nicely, morning program is going on very nicely, right? But that devotee, his heart is like he is afraid of saying something. He wants to say something, but he is not able to speak clearly. So what he is trying to say, then he tells me, okay Prabhuji, सब चीज़ तो ठीक ठाक है, बट ऐसा है कि डिवोटीज कुछ जा रहे हैं बीच छोड़कर, है ना? और
ऐसे ये सारी प्रॉब्लम आ रहे हैं. दिस इज द इंटरनल प्रॉब्लम. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, व्हाट इज द प्रॉब्लम देन. सो सिमिलरली दैट पॉप एंड अबोट, जो मीटिंग जो चल रहा था रब्बा और अबोट में, तो अबोट ने बोला कि यस फादर, और जो भी उसमें बोलते हैं ना, यस महाराज, हम लोग गुरु महाराज बोलते हैं. ओके ओके महाराज, सब चीज़ तो ठीक है, प्रॉब्लम है कि ओनली 4 डिवोटीज आर लेफ्ट इन द चर्च. इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने बड़ा प्लेसेस, कैसे टेम्पल चलेगा, सॉरी कैसे चर्च चलेगा, है ना. और 4 हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे चलेगा. मैं पहले पब्लिक आती थी, अभी पब्लिक भी नहीं आ रही है. देयर आर में मतलब देयर आर सो मेनी शॉर्टकमिंग्स. इतने कमी थी कि जो कि बता रहे थे. देन दैट रब्बा टोल्ड, मतलब जीबीसी ऑफ चर्च टोल्ड कि ओके डू नॉट वरी, बट अगर मैं बोली इफ आई से वन थिंग, सो देन ही आस्क्ड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, कि कैन वी ब्रिंग सम मोर डिवोटीज टू आवर टेम्पल सो दैट लाइक वी कैन सर्व इन अ बेटर वे. क्योंकि अकेले 4 जब में तो चर्च कैसे चले. Okay. Then he told, okay, I'll tell you one thing, and if all of you are able to follow, all these troubles will not come. Then he told that Pop or Abbot, okay, tell me, we are ready to. So of course, that Abbot and that Pop was very very senior, like in our school many brahmacharis are very very senior and they are very close to the GBCs. Right? So he told, okay, tell me, we are ready to follow. Then that Rabba told that, you are only 4, but I am sure, and I can say, he tells like this, that you are one of the Masiha out of the 4. Masiha means messenger of the Lord, right? And then he gets surprised and he asks, oh, 4 में से कोई एक मसीहा है. But he does not tell that, Guru is very very intelligent, right? Then he does not tell that अरे यही 4 में से कोई तो मसीहा. Earlier what, like they have fight in the sense शटल फाइट, है ना, कि थोड़ा कोल्ड वार चल रहा था मन ही मन, अरे हम लोग 4 हैं, ये सेवा है, ये सेवा है. देयर आर वेराइटीज ऑफ सेवा, राइट. सो they were asking, and then Rabba told you are one of the Masiha. आप लोग में से 4 में से कोई एक तो मसीहा है, बट एक है. He does not say tell कि अच्छा this devotee or this devotee is the Masiha, but he just say you are the Masiha. Out of the 4 you are one of the Masiha, and you can do anything. So okay. Then many talks were going on, and then all of the 4 devotees came to the Maharaj and that Rabba, and Rabba told that okay, आपको पता है कि 4 में से आप लोग कोई तो एक मसीहा है, and मसीहा is the messenger of the God, जो कुछ भी कर सकते हो, तो अकेले भी कर सकता है मसीहा, correct? So from the very next day there were great transformation among the 4 devotees. So what happened? 4 में अगली बार क्या होता था कि कोई एक दूसरे को just criticizing and blaspheming others. अरे ये डिवोटी लेट से उठ रहा है, they were like मतलब मेकिंग और मजाक उड़ाना कि अरे आप तुम तो देर. Although at the highest stage also it happens, right? But अगली बार से क्या होता है कि अर्लियर वाटर ने करे आप सेवा ये कर नहीं कर रहे, ये नहीं, just they were criticizing each other. But what happened when the Rabba told that you are one of the Masiha, respect for each one of them increased, and from the very next day each one of them started getting up early in the morning, doing their sadhana in their own world, like जो क्रिश्चियनिटी में होती है, साधना करना चालू कर दिया, और सब प्रेयर्स उनके जो होते हैं वो चालू कर दिया. like how it began, because Rabba told that कि अरे आप 4 में से कोई तो एक मसीहा है, like
लाइक वी आर बीइंग टोल्ड इन एवरी लेक्चर्स कि अरे हमको सोचिए बगल वाला डिवोटीज कौन से वी नेवर नो, somebody in the futures can be the sannyasi or somebody can like कौन है. So we should have a respect for each other, correct. Similarly that Rabba told that you are one of the Masiha. तो अगले दिन से क्या होता है कि वो रेस्पेक्ट बढ़ जाता है एक दूसरे के प्रति और सब they become very enthusiastic and doing their services very regularly और उठ कर फटाफट वो रेडी हो जाते हैं, अपना साधना करना चालू करते हैं. समझ में आ रहा है ना. So and everybody is shocked and जो भी डिवोटीज आ रहे हैं वहाँ पे बाहर के जो डिवोटीज आ रहे हैं उनको वेलकमिंग विथ अ स्माइल एंड like they are welcoming with they are just giving a warm welcome to each one of them who is coming to the church regularly. And ये सब होता क्या है कि like some visitors come, like how we welcome, like we have a registration counter like for the DOS and all. तो कितने अच्छे से हम लोग स्माइल करके बातचीत करें, so that we ask why, so that they come again and again to the temple, right. And let's assume पर another counter, not like वो अपना केस नहीं लेंगे, हम दूसरा केस ले सकते हैं कि जैसे टेम्पल में भी कोई आता है तो हम कितना वेलकम करते हैं. वी लाइक सर्व खिचड़ी प्रसाद डेली, करेक्ट. एंड मेनी ऑफ द आउटसाइडर, मेनी ऑफ द विजिटर्स गेट अट्रैक्टेड टू द खिचड़ी, राइट. एंड दे कम टू टेक ओनली खिचड़ी एंड उसीलिए उसके बहाने उनके दर्शन भी हो जाते हैं, भगवान के दर्शन भी ले पाते हैं. एंड दे आर अट्रैक्टेड टू दैट. व्हाई? बिकॉज we are giving facilities to them. They think okay, there is somebody who is taking care of us. Similarly, those in that church, like 4 devotees were there, Christian devotees, और उनके भाषा में जो भी हम बोलना चाहें. So when the Rabba told that you were one of the Masiha, right, then they start giving respect for each other. अरे नहीं, अरे कोई तो मसीहा है, मुझे नहीं मालूम है, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए. अरे उनसे सेवा हम क्यों, हमारी सेवा है, शायद हो सकता है कि तीनों में से कोई तो एक है, मैं ही नहीं हूँ, तो हमको रिस्पेक्ट देना है. और बाकी एक दूसरा क्या सोच रहा है, अरे नहीं हो सकता वो डिवोटी मसीहा, हमको उसके लिए कुछ तो करना है, वो तो भगवान का रूप है, वो तो भगवान का मैसेंजर है, हमको तो सर्व करना चाहिए. सो लाइक एवरीबडी इज डाइंग टू डू द सर्विसेज, एंड अर्लियर व्हाट दे यूज लाइक व्हाट वाज हैपनिंग कि अरे ठीक है तू कर ले सेवा या आप कर लो, मैं थोड़ी देर बाद करूँगा. लाइक दे आर गिविंग एक्सक्यूज, करेक्ट. इफ सम गेस्ट वर कमिंग, दे आर टेलिंग अरे आप जाओ वेलकमिंग करो, आप रिसीव करो. सो दे आर जस्ट डूइंग लाइक व्हाट वी कैन से, एक दूसरे को जस्ट दोष देना. बट नाउ एवरीबडी इज अवेयर, एवरीबडी मीन्स 4, एवरीबडी इज आउट ऑफ द चर्च, only 4 devotees are remaining and they were trying to follow the instructions what their guru have said, correct. So and fit to temple, the temple becomes attractive. Many of the visitors start coming again, फिर से वो आना चालू करते हैं because they have started giving facility to them. And पहले क्या होता था कि जब तक वो फैसिलिटी कोई देगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं. मान लो आपके घर में कोई बेस में आता है, कोई नया बच्चा, हम उसको पूछेंगे नहीं तो होगा, फिर दोबारा वो आएगा, कभी नहीं आएगा. सिमिलरली इन दैट सेंस वो होता क्या था कि 4 तो थे, फिर कोई इधर मुंह बनाए रखा है, इधर दे डोंट हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस. सो व्हाट विल हैपन, वो एंटी प्रीचिंग होता है, प्रीचिंग नहीं होता है. बट जैसे ही एज सुन एज दे स्टार्टेड following the instructions of the Rabba, so everybody is seeing like temple again start flourishing. और बड़ा पुराने जैसे टेम्पल चर्च हो गया, फिर लोग आने लगे कि अरे सब कितने खुश हैं, राइट, और कितने रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये लोग कुछ चाहते हो. व्हाट इज द लाइक सीक्रेट ऑफ देयर हैप्पीनेस. सो यहाँ पे वन थिंग वी हैव लाइक देयर इज नो what we say कि sickly conditions, मतलब there is healthy conditions now in the church. but वो पहले क्या था, healthy conditions नहीं था. जो spiritual health होता है, not talking about the material health, तो spiritual health जो था वो अच्छा नहीं था. बट अभी 4 डिवोटी से ही, and
अब व्हाट हैपेंड, पहले क्या पूछ रहे थे, डिवोटीज कम है, एंड व्हेन दे their sadhana is good, and when they started getting up early in the morning, when they started like greeting guests with a like warm welcomes and welcoming करना बहुत अच्छे चालू किए, तो everybody started attracting to the church. यानी मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ. ऑफर मतलब लाइक पहले वो खोज रहे थे, दे वर सर्चिंग फॉर लाइक सम पीपल शुड कम एंड ज्वाइन द चर्च सो दैट सेवा कुड बी डन वेरी प्रॉपरली. बट अभी क्या हो रहा है कि अभी लोग खुद से अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनसे इंस्पायर होकर पूछ रहे हैं कि क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ. सो इससे लाइक हमको क्या मोरल मिलता है? द मोरल इज दैट कि देयर शुड बी ऑलवेज, आइदर इट मे बी इन द वॉइस और आइदर इट मे बी इन द बेस, या कोई सेंटर हो सकता है अपना, तो वहाँ पे देयर शुड बी ऑलवेज सम हेल्दी spiritual conditions, correct ना? There should be no like sickly bass or sickly voices. कभी कभी ऐसा हमने देखा है, कोई बता रहे थे कि कभी कभी ऐसा भी वॉइस में हुआ है कि अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड के बारे में बातचीत लोग बता रहे थे कि कुछ डिवोटीज है और फिर डाउन हो गए, 4-5 डिवोटी, फिर बच गए 1-2 डिवोटी, और फिर बाद में होता क्या है कि सेंटर को क्लोज करना पड़ता है. सुना है, हमने देखा भी होगा ना कि कुछ डिवोटी जब भी बाद में बंद करना पड़ता है, 4-5 डिवोटी बच जाते हैं ना, फिर उसके बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज होते हैं, फाइनेंशियल इशूज एंड ऑल, है ना. सो प्रभु इज टेलिंग कि व्हेन सिमिलरली इन केस ऑफ बेस और वॉइस और कोई भी सेंटर्स हो गए, तो वहाँ पे अमॉन्ग द डिवोटी देयर शुड बी सम हेल्दी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है अच्छी होनी चाहिए. स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब क्या, अगर कोई वॉइस आता है तो देयर शुड बी अ स्माइल ऑन देयर फेस, नॉट आउटसाइड ओनली, that should not only be an exterior or external smile only, but वो हमको वो जब प्रैक्टिस जब रहेगा, अच्छी साधना होगी, तो अपने आप को झलकता है, लाइक एवरीबडी कैन जज इट ऑन योर फेस, राइट. सो देयर शुड बी नो लाइक आई सेंटर्ड इन द बेस में, मतलब बिकॉज ये बेस के लिए तो हम बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, प्रभु जी उससे मैं वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे. तो वहाँ पे पहले क्या था, वो चर्च में आई सेंटर्डनेस था, मैं आई मी एंड माई, राइट. तो सेल्फनेस ओरिएंटेड था पहले, है ना. और फिर नंबर घट गया जो कि डिवोटीज थे वहाँ पे, लेकिन फिर जैसे ही स्पिरिचुअल हेल्थ उनका अच्छा हुआ, नंबर्स बढ़ना चालू हो गया. सेल्फ सेंटर्डनेस से क्या हो गया, दे बिकम गॉड सेंटर्डनेस, राइट. सिमिलरली इन द केस ऑफ बेस, व्हाट वी हैव ऑलवेज लाइक वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि जो मॉर्निंग प्रोग्राम स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और जब मॉर्निंग प्रोग्राम जब स्ट्रिक्ट रहेगा और अच्छा रहेगा तो हमारा ऑटोमेटिक एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड. अगर कुछ प्रॉब्लम आता है प्रोजी से, that if problem happens, it means if there is something gadbad in our sadhana. Prabhuji was once telling me, Radha Kunjari temple camp, and one day like आग लग गई थी टेम्पल में, and Prabhuji directly told that there is some devotee who is breaking the rules, breaking the 4 abilities or something. रोजी है, कोई डिवोटी कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, उसी कारण से ऐसा हुआ है. लाइक कैचिंग फायर इन द टेम्पल इज नॉट अ जोक, राइट. सो रोजी वाज ट्राइंग टू से मेंशनिंग देयर कि इफ एंड लॉर्ड सीज एवरीथिंग, करेक्ट ना, वी कांट हाइड फ्रॉम द गॉड. 10 डायरेक्शंस आर देयर, यमराज इज वाचिंग, सो वी कांट हाइड फ्रॉम द गॉड. So we should take a lessons from this story, that ours should be like our sadhana should be very strong, right. There should be no self-centeredness. We should always think about the devotees, right. And we should have this opinion in our mind, okay, कोई भी जो डिवोटी है हम जज नहीं कर सकते कि कैसा है, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस पे भी हमको
जज नहीं करनी चाहिए. समटाइम्स डिवोटीज स्टार्ट जजिंग ऑन द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द डिवोटी. अरे ऐसा है वैसा है, बट वी नेवर नो वो डिवोटी कैसा है, और उसका हो सकता है कि फ्यूचर में वो साधु ब्रह्मचारी बने, सन्यासी बने, वी नेवर नो. और पास्ट में क्या था, हो सकता है कि हमको सिखाने आया, ये भी तो हो सकता है. सो वी शुड बी वेरी कॉशियस. और बहुत हमको मतलब जितना टू द डिग्री वी विल बिकम sensitive to that degree, we should understand to that degree will be advancing in Krishna consciousness. तो हमको हमेशा सोचना है कि आई एम द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट सर्वेंट ऑफ द डिवोटीज. हमको सेल्फ सेंटर्डनेस नहीं होना है, राइट. एंड लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल. गिवन हम प्रसाद अगर कि समटाइम्स आप ऐसे होते हैं कि हम स्टार्टिंग वो तो हम पूरे विल सी द डिटेल्स. SRC GDC पर केयर इज ओनली देयर. पूरी उस लेक्चर्स में सिर्फ केयर के ही बारे में है. D फॉर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा एंड शास्त्रा, ये सारी चीज़ें वो सब हम डिटेल्स में देखेंगे, है ना. सो देयर इज नो लाइक देयर शुड बी नो स्पिरिचुअल, मतलब वो जजमेंट हमको नहीं, जजमेंटल नहीं बनना है. वी डोंट हैव टू बिकम जजमेंटल, राइट. So, like in many bases also, like Soja is saying ki when the speaker comes, so we welcome like anything, like we welcome with a smile, we welcome with very warmly. So what happens? So और उससे पता चले कि वो there is some spiritual, जो spiritual health है इस बेस का बहुत अच्छा है. इसकी जो वॉइस का जो spiritual health है बहुत ही अच्छा है. So Prabhuji was telling it means overall, if I say that if bhakti is going on very nicely, everything will be very smooth. So basically Prabhuji was telling that bhakti attracts people, correct now? And if somebody is very good at bhakti, so appearance भी बहुत अच्छा हो जाएगा. Prabhuji was giving the example of Prabhupada. So at the age of 70-80, Prabhupada went to the Western countries and young boys and girls were attracted to Prabhupada. Can you imagine? Prabhupada faces were like, oh, ऐसे 70-80 साल की उम्र. So this was the power of bhakti. So whenever bhakti resides in our heart, we will be very blissful. हम लोग खुश रहेंगे. So I was telling the example of church, है ना. तो जब साधना जब उनकी अच्छी हो गई और जब डिवोटीज का जब उन्होंने टेक केयर करना चालू किया उन्होंने, तो हर चीज़ क्या हो गया, वो फिर पूरे विजिटर से फिर भर गया वो टेम्पल. लोग आना चालू कर दिए. फिर उसमें बाहर की जो लोग वो ज्वाइन करना चाहते थे डिवोटी, मतलब चर्च के अंदर जो प्रॉपर जो उनका रूल्स रेगुलेशन होता है, they were ready to follow. क्यों? क्योंकि all of the 4 devotees become very humble and they started giving respect to each other. They started taking care of each other. They started taking care of their sadhana. They become self-centeredness. They become God-centeredness from self-centeredness. They stop criticizing each other. They stop blaspheming each other. So हुआ क्या कि लोग अट्रैक्ट हो गए. Similarly, Prabhuji was telling कि वो कैसा हो गया कि a tree laden with the fruit will attract many birds. जैसे कुछ पेड़ पौधा है ना, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो अलग अलग डिफरेंट बर्ड्स आके लगे हुए रहेंगे, है ना. अलग अलग बर्ड्स आएंगे, है ना. कोयल आएगा, बहुत सारे बर्ड्स रहेंगे, करेक्ट. सिमिलरली कि कोई चर्च है, जैसे उसका एग्जाम्पल मुझे दे रहे थे, तो जब फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ डिवोटीज वेलकमिंग अदर्स, तो हो क्या रहा है, जैसे बर्ड्स का कंपेयर यहाँ पे किससे हम कर सकते हैं, बाहर के जो विजिटर्स हैं, करेक्ट ना. जो विजिटर्स हैं वो टेस्ट ले रहे हैं. जैसे बर्ड्स हैं, अलग अलग चिड़िया है, पक्षी, उस फल को चखेंगे, टेस्ट करेंगे. वैसे ये फल क्या है, जो मंदिर का जो फैसिलिटी है, जो उस चर्च के बारे में मैं बता रहा था, वो जो डिवोटीज हैं दे आर टेस्टिंग, है ना. सो प्रोजेक्ट टेलिंग कि
humility actually means a tree laden with the fruit will attract many birds, और a tree laden with the fruit will attract, कोई भी ट्री है जो फल रहता है, एक तो वो हम्बल रहता है, पूरा झुक जाता है ना, पूरे फल फूल से जो पूरा क्या बोलते हैं वो नीचे की तरफ होता है, कभी भी ऐसा नहीं दिखा है आपने, एकदम लंबा है और फल लगा हुआ है। एंड तो हमको यहाँ पे क्या बनिए कि लाइक वी शुड नो, लाइक Prabhuji was mentioning one terms like sense of belonging, like everybody, we among us, हम लोग जो सभी हैं, then like हम लोग फैमिली से भी हम लोग सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, करेक्ट। हम लोग हर दिन फ़ोन पे बातचीत करते हैं बिकॉज वी आर अटैच्ड टू देम, करेक्ट। तो Prabhuji was giving एग्जाम्पल ऑफ हिम, वो खुद का एग्जाम्पल ले रहे थे कि उनकी सिस्टर जो है कोयम्बटूर में रहती हैं, मतलब है ना, तो वहाँ पे जब वो गए थे अपनी सिस्टर्स के यहाँ, तो उनका भांजा है राधेश्यामपुर का, तो पहली बार उनका भांजा उनको देखा जब सिर हेड मतलब हेड सिर में और फिर सैफरन में, तो गेट पे जब Prabhuji गए तो ही स्टार्टेड येलिंग मम्मा, मतलब वो बिकॉज पहली बार देखा नहीं था, डर गया कि अरे सैफरन में और यू नो हेड से भी कौन है ना। देन Prabhuji is mentioning कि उनकी बहन बता रही, अरे यू डोंट नो ही इज राधेश्याम मामा, ही इज राधेश्याम मामा, राइट। सो Prabhuji is mentioning that वो जो लड़का है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग किससे, अपनी मदर से है, वैसे हम लोग किससे, लाइक वी आर also attached with our parents because there is some sense of belonging, that's why we talk to our parents daily, और डेली नहीं तो 2-3 दिन में एक बार या वीक में एक बार बातचीत करते हैं, right? So Prabhupada tells and Prabhuji was telling that we similarly we should have some sense, a strong sense of belonging with the devotees, right? With the Shastra, with our counselors. Otherwise, if you are not attached with the devotees, it means Prabhupada says that it's just a matter of a skin disease. This is like a skin disease. We are only on the platform of worldly consciousness. So we must have we should develop a strong sense of belonging with the devotees, a strong sense of belonging with the scriptures, and a strong sense of belonging with the Prabhupada's book, a strong sense of belonging with our authority, right? A strong sense of belonging with our juniors, a strong sense of belonging with our seniors. Overall, if I say strong sense of belonging with the overall devotees. Of course, there should be some sense of belonging with our parents. Already that is there, but that should be also on the platform of Krishna consciousness. That should be also on the platform of keeping God in the center. So Prabhuji is mentioning that a strong sense of belonging in the means we should think that Guru is our real father, Shastra is our real mother, right? Association of the devotees is our real family. So when the environment, when the base environment is very good, very moody, and when there is some sense of belonging to the devotees, to the authorities, to the scriptures, then the base will become like a magnet for us. एक चुंबक की तरह हो जाए, इधर से जाने का मन ही नहीं करेगा। So Prabhuji is giving the example of Radha Gopinath temple. So Prabhuji is giving the example of Radha Gopinath temple, that Chopati temple. One time, Maharaj was saying, Radhanath Swami Maharaj was saying that
devotees should be cheerful, devotees should be blissful, so that everybody should get attracted to him, and then we can distribute bhakti to them. Care must be given, respect must be given to the devotees. Like if somebody is giving the lectures, like in the base also sometimes it may happen, voice in the voice when we were in the voice, those who are senior devotees or those who are like in the final year, third year, so there was this tradition that उनको lectures देना है, so that they can develop. So Prabhuji is telling, वो sense होनी चाहिए. We should pray. Somebody is going obeisance, Prabhu please pray for me so that I can give the class very nicely and I can please all of you, I can serve you all. So that devotee is also going down and saying, Prabhuji, no, I'm very, I don't like, I will pray for you, but I don't have the quality. You are very, very senior to me, or means appreciating each other. So the swabhav of a Vaishnava is always, praising and glorifying the other devotees. So one time when I was attending this one silver jubilee of Radha Kunj Bihari, so Gopal Krishna Goswami Maharaj, many brahmachari and sannyasi had also come. Right? So Radheshyam Prabhu was glorifying Maharaj, Gopal Krishna Goswami Maharaj. Maharaj is very merciful, काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीज़. तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज टोल्ड कि राधेश्याम प्रभु इज अ वैष्णव, राइट? सो the swabha and the nature of a Vaishnava is to glorify other devotees, glorify other Vaishnava. So Radheshyam Prabhu is like wonderful Vaishnava, that's why he is glorifying him. Of course, both of them are exalted Vaishnava. So Maharaj was glorifying Radheshyam Prabhu was glorifying Maharaj. So ये भावना होनी चाहिए. तो ये बता रहे थे कि जब हम किसी को कोई जा रहा है, तो गोपीनाथ का एग्जाम्पल दे रहे थे, और भी कोई अगर कहीं जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि अरे प्लीज़ प्रे फॉर मी, तो ये नहीं सोचनी चाहिए कि अरे ठीक है, मतलब लाइक समटाइम्स इट हैपेंस, राइट? वी आर ह्यूमन बीइंग्स और वी आर लाइक ऑन द इनिशियल स्टेज ऑफ द भक्ति. सो ये हो सकता है कि अगर कोई बोल रहा है मेरे लिए प्रे करने के लिए, तो सिर्फ वी आर ओनली सेइंग एक्सटर्नली, करेक्ट ना, कि ठीक है मैं प्रे करूँगा. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, लाइक मैं मायापुर यात्रा पे था सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, तो उस समय बहुत सारे लगभग 50-60 डिवोटीज वर देयर. तो मेरे सीनियर थे, तो ही हैड टोल्ड मी कि रंजन प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी टू राधा माधव. एंड ओके प्रभुजी, आई विल प्रे. एंड आई वाज सरप्राइज्ड if somebody says that okay please pray for me, really mean it. हम कितने कभी हल्के में लेते हैं, ठीक है हम प्रे करेंगे, बट एक्चुअली वी शुड मीन इट. जब हमारे ऊपर जब आता है तब हमको समझ में आता है कि अरे जब प्रेयर्स की जब ज़रूरत होता है कितना इम्पोर्टेंस होता है. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, प्रभु जी मैं मायापुर चला गया, प्रभु जी कॉल मी, रंजन प्रभु कहाँ हुआ? प्रभु जी आई एम इन फ्रंट ऑफ राधा माधव, प्लीज़ प्रे फॉर मी. उस समय रिमाइंड प्रभु जी ने किया कि ताकि मैं भूल ना जाऊँ अपने प्रेयर्स करने के लिए. तो वॉइस में था, व्हेन आई लेफ्ट द वॉइस देन प्रभु जी टोल्ड ओके प्लीज प्रे फॉर मी. देन आई वाज जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राधा माधव, देन प्रभु जी आल्सो टोल्ड प्लीज प्रे फॉर मी. इन द मैसेजेस आल्सो प्रभु जी टोल्ड प्लीज प्रे फॉर मी. देन आई वाज ओह माय गॉड. सो दिस इज हैपेंड लाइक आई वाज इन द ऑफ कोर्स सेकंड ईयर, दैट वाज माय इनिशियल. ऑफ कोर्स राइट नाउ आल्सो आई एम ट्राइंग टू डू द भक्ति प्रॉपर्ली, राइट? सो we should take this very, very, if somebody is saying asking for the prayer, we should really pray it means. One thing also I feel that I don't know whether you know Prem Data Gaurang, he is one of my friend. He had stayed in the voice also. He had stayed in the VT also. He is initiated by Bhakti Charaswami Maharaj. My father actually had a heart attack, so he had to go through the surgery, operation जो होता है angioplasty. Then I told Prabhuji, mentioned in the chat, I requested कि please pray for me.
ओ माय गॉड। और रियली प्रभु जी ने क्या किया पता है कि मेरी जो भी उनके डिवोटीज थे, प्लीज प्रे फॉर रंजन प्रभु's फादर, ही इज गिव लाइक ही वेंट थ्रू द हार्ट अटैक एंड उनके ऑपरेशंस होने वाले हैं। एंड ओ माय गॉड, प्रभु जी रियली मतलब इतने उन्होंने सीरियसली इसको लिया। मैं जिस तरह से बोला कि प्लीज प्रे फॉर माय फादर, सारे डिवोटीज के बीच में फैलाया, एंड वो रिप्लाई भी आ रहा था उनका कि ये डिवोटी ने आपके पिताजी के लिए रिप्लाई किया, ये डिवोटी ने बोला क्योंकि आई विल चेक वन मोर राउंड फॉर हिज फादर। देन आई लर्न द लेसन्स। इफ सम डिवोटी इज टेलिंग अस टू प्रे, वी शुड प्रे, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केयरिंग नेचर ऑफ अ डिवोटी, राइट? सो ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। So Radhe Shyam Prabhu was saying कि Vaikuntha, if the spiritual health is very good, then it is as good as Vaikuntha. Vaikuntha means there is no anxiety, कोई चिंता नहीं है। Radhe Shyam Prabhu says that when the duplicity becomes zero in the devotees, the devotee becomes ecstatic. ऐसे कि duplicity in the sense कि अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और चल रहा है। लाइक कभी कभी होता है हम कि काउंसलर को खुश करने के लिए हम कुछ चीज़ें अच्छा जब वो रहते हैं तो उनके प्रेजेंस में बहुत सेवा करते हैं, वो नहीं है तो हम कभी कभी बहुत ढीले पड़ जाते हैं, है ना? तो समटाइम्स टू प्लीज द काउंसलर द अथॉरिटीज वी डू द सर्विस, बट वो डुप्लिसिटी व्हेन द राधे श्याम सेज व्हेन द डुप्लिसिटी बिकम्स जीरो, डुप्लिसिटी मीन्स अंदर और जो बाहर जो है वो जब सेम हो जाएगा तब द डिवोटी फील्स एक्सटेंडिंग, वो खुश रहेगा, डांस करेगा। And Prabhuji also says that if some devotee is not happy in the base or in the voice, it means there is something, then his sadhana is not going on very well. Prabhuji also okay, this is very true. Like हमको खुशी के लिए और क्या है, क्यों नहीं खुश रह सकते, है ना? Yeah, there may be some like material miseries के कारण हो सकता है कभी कभी भी प्रॉब्लम आए। Prabhuji says कि in the voice or center devotees should be ecstatic, happy, इस खास के जो यूथ एज है। एक रामानुजाचार्य एक बार एक वैष्णव को भेजते हैं दूसरे वैष्णव के पास में कुछ सीखने के लिए कि जाओ ज्ञान थोड़ा लेकर अर्जित करके आओ। किसके पास? तो अनंताचार्य के पास में रामानुजाचार्य एक वैष्णव को भेजते है ना अनंताचार्य के पास कि जाओ उनसे कुछ ज्ञान लेकर आओ, गो एंड लर्न सम नॉलेज फ्रॉम हिम। तो व्हेन दैट वैष्णव गोज टू द अनंताचार्य एंड साउथ इंडिया में पंक्ति बोला जाता है। पंक्ति मतलब वो एक्चुअली हिंदी में वो लाइन होता है, बट वो पंक्ति में खिलाया जाता है लोगों को, है ना? एक लाइन जैसे टेम्पल में भी अपने क्या होता है, एक लाइन में खिलाया जाता है। वहाँ जाते जाते जो वैष्णव थे अनंताचार्य के पास पूछते हैं, हु इज अ वैष्णव, कौन है वैष्णव आपके अकॉर्डिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वैष्णव? टेक दिस बकेट एंड सर्व द डिवोटीज। उन्होंने बिना कुछ बोले क्या किया, बकेट लिया, डिवोटीज को सर्व किया। फिर हो गया वन पंक्ति was done with the eating, एक पंक्ति खा लिया तो फिर दूसरा पंक्ति आ गया। देन व्हाट आई शुड डू, फिर उन्होंने बोला कि और इनको भी खिलाओ, फिर पोछा मारो, फिर ये करो, फिर देन वो जो डिवोटी आए थे फिर उन्होंने पूछा कि फिर और मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू, नाउ यू टेक प्रसाद। देन दैट डिवोटी वाज टेकिंग प्रसाद। देन प्रभुजी अगेन आस्क्ड हिम what about my questions, who is a Vaishnava, tell me who is a Vaishnava, I want to know what is the meaning of a Vaishnava। तो वो कुछ तो आई थिंक कन्नड़ और कुछ तो वहाँ के भाषा में वो राधेश्याम प्रभु स्टेलिंग वो बताते हैं कि वैष्णव कौन है, वो बताते हैं। तो हो सकता है कि देर मच भी वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट प्रभु जी ने जो बोला वही मैं बता रहा हूँ। राधेश्याम प्रभु जी साउथ इंडियन तो उनको आता रहेगा। तो उन्होंने अनंताचार्य ने उन वैष्णव को बताया, तो जब उन्होंने पूछा कि वैष्णव कौन है, तो उन्होंने बताया कि कोकई पोल रपम, कोकई पोल रपम, कोरई पोल रपम, ओनई पोल रपम या कोरई पोल रपम, कपई पोल रपम, ओनई पोल रपम,
इसका मीनिंग क्या है वो वहाँ पे बताते हैं राधेश्याम गुरु। देन एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग। वो मदर टंग है ना वहाँ का, मतलब वो। सो कोकई पोल्ड मीन्स अ वैष्णव शुड बी लाइक अ क्रेन, है ना। फिर अ वैष्णव शुड बी लाइक अ हेन। अब उसका एक्सप्लेन प्रोजी बताते हैं। अ वैष्णव शुड बी लाइक अ क्रेन, अ वैष्णव शुड बी लाइक अ हेन। हेन जो होता है मुर्गी, मुर्गी बोलते हैं। अ वैष्णव शुड बी लाइक अ सॉल्ट एंड अ वैष्णव शुड बी लाइक यू। मतलब जो वैष्णव ने जो क्वेश्चंस पूछा था वो आपकी तरफ होनी चाहिए। तो प्रोजी हमें बता रहे थे कि या सो कोकई पोल रपर मतलब अ वैष्णव शुड बी लाइक अ क्रेन। सो यू माइट हैव सीन अ क्रेन लाइक he is standing out at the pond or river and he just looking, his eye side is below and ध्यान से वो देखते रहता है और एक बड़ा मछली आता है तब अटैक करता है। करेक्ट। तो अब इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? सो प्रोजी इज टेलिंग कि Vaishnava should not be satisfied with the position like Chandra, Indra, Brahma or software engineers, CA engineers, है ना। Like everything is subordinate to the supreme pleasure. So हमको क्रेन की तरह होनी चाहिए। वो छोटे मोटे मछली की तरफ अटैक नहीं करते, वो करते रहते। जब बड़ी मछली है तो अटैक करते हैं। अब फॉर अ डिवोटी व्हाट कैन बी द बड़ी मछली और व्हाट कैन बी द बिग सर्विसेज? जितना मिनियल सर्विसेज से उतना बड़ा सेवा, राइट। तो अ ग्रेट डिवोटी डज द मिनियल सर्विसेज, जितना छोटा छोटा, टॉयलेट क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग, है ना। तो वहाँ पे तो ये बता रहे थे कि एक वहाँ पे चैतन्य चरितामृत से 9.29 एक श्लोका जो ये बोलते हैं कि रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चित आत्मनि इति रामा पादेन सौ पूरम ब्रह्मा विदीयते, right? So what does it mean? The supreme absolute truth is called Rama, means pleasure. Become Rama, become the transcendentalist, because the transcendentalists take pleasure in the unlimited true pleasure of a spiritual existence. So Prabhupada is saying it is not that yogi discards the pleasure, but yogi accepts the supreme pleasure. Right? Yogi takes pleasure in the unlimited true pleasure of a spiritual existence. Yogi takes pleasure in a spiritual juice. So I read one statement that a spiritual happiness is like material happiness is like a bamboo biting. Bamboo होता है ना, बांस। और spiritual health is like a spiritual pleasure is like a sugar cane biting. गन्ने की कितना कंपेरिजन कितना बढ़िया है ना। So a spiritual happiness is like a sugar cane biting, sugar cane juice कितना अच्छा लगता है। और material happiness is like a bamboo biting. बैम्बू अगर कोई खाएगा तो क्या होगा? वो कट सकता है ना, ब्लड आ सकता है। बट दिस वन a spiritual happiness is like a sugar cane biting, गन्ने खाने के जैसा है। तो सेवा जो इतना ये है, स्पिरिचुअल प्लेजर इज सो मच इंटॉक्सिकेटिंग, और सर्विंग टू कृष्णा इज सो मच इंटॉक्सिकेटिंग दैट इवन लक्ष्मी देवी इज ऑल्सो टेकिंग झाड़ू, क्लीनिंग। इवन कुछ वहाँ पे गंदगी नहीं है तो लक्ष्मी देवी उतावली हैं सेवा करने के लिए। तो कैन वी थिंक कि लाइक फॉर न्यूफाइड लाइक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है सेवा करना। तो वी शुड टेक प्लेजर इन दैट। Rohi was also mentioning कि we should be like a चातक bird, चातक पक्षी, चातक पक्षी, चातक पक्षी क्या होते हैं? They wait for the स्वाति रह,
बारिश की, वो ऊपर मुँह ही करके वो बैठते हैं कि वही पानी हमको पीना है। लाइक दे आर नॉट हैंगरिंग फ्रॉम द मडी वाटर, जो कीचड़ के पानी है और नॉर्मल पानी है। दे ऑलवेज लुक अप। तो हमको उससे भी ये सीखना है कि वी शुड बी लाइक ए चातक पक्षी, है ना। फिर आता है प्रभु इज गिविंग द एग्जांपल ऑफ डक एंड स्वान। डक होता है ना, बतख होते हैं, और स्वान हंस। तो स्वान कैसे, कभी देखा आप लोगों ने तालाब में कैसे वो ज़्यादा इधर उधर नहीं करते, वो लाइक थोड़ा देर ये करेंगे फिर ऐसे लगता है कि रॉकेट की तरह वो भागते हैं, मतलब पॉन्ड में, है ना। देखा कभी आपने, कभी ऑब्जर्व करना मिले तो एक बहुत ऐसे एकदम आराम से एकदम भागते हैं, एकदम पूरा कोई ट्रैफिक जाम वगैरह नहीं रहता है। बट डक जो है, बत्तख जो है, क्या पैर पैर की वो आवाज़ आते हैं ना, वो उसी में इर्द गिर्द वो घूमते रहते हैं। सो वी शुड नॉट बी लाइक अ डक। nowadays what happens, जो डक है they are just beating around the bush, उधर ही बस इधर के उधर वो घुमा रहे होते हैं। Like somebody is running behind the women, somebody is running behind the wine, somebody is running behind the smoking, somebody is running behind the sense gratifications. But the swan का नेचर क्या हमको वैसा होनी चाहिए। और उनका ये है ना, स्वान उन्हीं का ये है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, कि दूध और पानी अगर रखा जाए तो सिर्फ दूध को खींच लेते, पानी को छोड़। तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ पूकई पोल रपम। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, ये प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है ना। तो जो हमने सुना था वो मैं बता रहा हूँ अगेन। कोरई पोल रपम मतलब हेन। मुर्गी को आपने देखा है, कितना भी पत्थर उत्थर रहेगा उसमें से वो ग्रेन्स निकाल लेती है अपने खाने के लिए ना। कंकड़ पत्थर उसमें रहेगा और उसमें जो खाने वाली जो चीज़ें हैं, राइस सब कुछ वो निकाल, उतना में से वो आउट, उतनी डस्ट होने के बाद वो राइस निकाल लेते। वैसे ही हम डिवोटीज को भी होना चाहिए, एक्सट्रैक्टिंग गुड थिंग्स फ्रॉम द फिल्दी प्लेसेस। प्रभु इज आल्सो मेंशनिंग कि जैसे डिवोटीज शुड बी लाइक इवन गोल्ड रिंग, एंड गोल्ड रिंग इज देयर इन द स्टूल पिट, तो उसमें से गोल्ड रिंग को निकाल लेना। तो वी शुड बी लाइक डिवोटीज शुड बी लाइक सो मच चूजी कि हमको निगेटिव चीज़ें नहीं देखनी है। वी डोंट हैव टू लुक अपॉन द निगेटिव थिंग्स। व्हाट इज गुड फॉर अस, जस्ट टेक इट। द थर्ड वन इज कपई पोल रपन। कतई पोल रपन मीन्स वी शुड बिकम लाइक अ सॉल्ट। सॉल्ट का नेचर क्या होता है? सॉल्ट इज ऑल परवेडिंग, राइट। वो पूरी सब्जी में रहता है। लेकिन अगर नमक की अगर थोड़ी सी कमी हुई तो सबको ही बोलेगा अरे सॉल्ट इज नॉट देयर, अरे नमक की कमी है, नमक की कमी है। लेकिन अगर नमक हर चीज़ ठीक है तो सॉल्ट का नाम होता है, नहीं होता है। अरे सब्जी बहुत ही बढ़िया है। तो सिमिलरली बट सॉल्ट का क्या रोल है? बैकग्राउंड में रोल है। तो सिमिलरली अ वैष्णव शुड नॉट टेक द क्रेडिट। हमको बैकग्राउंड में कोई भी शुड ऑलवेज चाहिए और बेस्ट की जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो बैकग्राउंड में रहकर सेवा कर रहे हैं। वी शुड बिकम लाइक अ सॉल्ट। सो अ वैष्णव डज सर्विस बट नेवर टेक क्रेडिट। नेक्स्ट इज ओनई पोल रपम, मतलब डिवोटी शुड बी लाइक यू। जो जिसने अनंत आचार्य से जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको उन्होंने बताया कि डिवोटी शुड बी लाइक यू, भक्त वैष्णव शुड बी लाइक यू। वैष्णव जो होनी चाहिए वो आपकी तरफ होनी चाहिए, कि नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन एंड अमान ही ना माने देना। इसके लिए प्रभु जी एक फिर से एग्जाम्पल देते हैं बहुत सुंदर कि देयर इज वन डिवोटी कॉल्ड कृष्ण क्षेत्र प्रभु, इज द प्रभुपाद डिसाइपल। तो एक बार राधा गोपीनाथ टेम्पल में आए थे तो श्यामानंद प्रभु टॉयलेट क्लीन कर रहे थे एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ राधा गोपीनाथ टेम्पल, है ना। तो जब उन्होंने देखा, ओ व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम प्रभु, तो उन्होंने बोला श्यामानंद दास। Oh, you are only that Shyamanand Das who is the president of Radha Gopinath temple? This temple? Yes, Prabhu, yes. Oh, you are doing toilet cleaning. So देखो मतलब कृष्ण क्षेत्र में वो उनको जानते थे, बट उनको मतलब ऐसा कभी भी उनको नहीं होगा अरे मुझे इतने डिवोटी जानते रहे।
तो उतने बड़े डिवोटी उतने मिनियल सर्विस कर रहे हैं। फिर गोविंद प्रभु, तो ही वॉज ऑल्सो cleaning toilet or some doing other services. Then Shyamanand Prabhu, that Krishna said to Prabhupada disciple is asking, also named to Govind Das. Acha, you are only that Govind Prabhu who travels in the western countries and preaching a lot, right? So then he tells, yes, true. So why you are doing many? No, I haven't told to do only this. उनको यही करने के लिए बोला गया, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और डिवोटी शुड बी लाइक, जितना एडवांस उतना मिनियल सर्विस हमको करनी चाहिए। फिर प्रभु वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ प्रताप रुद्रा, जगन्नाथ जी के सामने वो ग्रूमिंग कर रहे हैं। सर्विस का रिवार्ड क्या है? सर्विस ही होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कि आप सर्विस कर रहे हो और एक्सपेक्टिंग करें कुछ तो मिल जाए, अगर दूसरा सर्विस मिल जाए, लाइफ लॉन्ग सर्विस मिल जाए, उससे बड़ा एडवांटेज क्या है ना? तो एक प्रिविलेज है। तो भक्ति लाइक सॉफ्टन्स द हार्ट, भक्ति जो हमारे हृदय को मुलायम करती है ना। और दया, मर्सी दूसरे लिविंग एंटिटीज के लिए तो है ही, जब आप फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो प्रभु जी मेंशन कि कोई व्यक्ति दूसरे को माफ कब कर सकता है, क्षमा कब कर सकता है? जब भक्ति भी हो और दया भी हो, तो ही कर सकता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, वी बिकम वेरी एडमेंट और बहुत जिद्दी बन जाते कि नहीं तुमने गलती की, हम माफ़ कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा कभी कभी मन में आ जाता है। और बुरी भावना के साथ हम उस डिवोटीज के या कोई भी व्यक्ति को लेकर मन में हम बैठा लेते हैं। बट प्रभु जी इज टेलिंग कि आवर एबिलिटी टू फॉरगिव अदर्स इज डिपेंडिंग ऑन द भक्ति एंड दया। हाउ मच भक्ति we have and how much we have the daya for the other living entities, then only we can forgive others. Forgive and forget, Prabhuji tells. So by practicing Krishna consciousness seriously, by practicing devotional service very sincerely, we can awaken bhakti in our heart. Prabhuji mentioned कि a sickly person has contagious disease. Contagious disease मतलब क्या? जो sickly persons, it means कि उसको क्रिटिसाइज करने की आदत है, दूसरे लोगों के बारे में ब्लास्फेमिंग करने की आदत है, तो क्या करता है कि वो फैलते जाता है। प्रभुजी इन वन ऑफ द लेक्चर्स प्रभुजी वाज मेंशनिंग कि ब्लास्फेमिंग और क्रिटिसाइजिंग डिवोटीज इज लाइक कि टेकिंग दिस वन, क्या बोलते हो उसको, स्टूल, और आप भी सूंघ रहे हो और दूसरे किसी को भी सूंघा रहे हो। तो प्रोजेक्ट मेंशनिंग कि वी हैव टू लाइक बिकम वेरी वेरी अवेयर, डू नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडी, डू नॉट ब्लास्फेम एनी डिवोटीज। नियोफाइट मीन्स, प्रोजेक्ट जस्ट ऐसे हंसने के लिए बता रहे थे और सीखने के लिए भी, कि नियोफाइट मीन्स न्यू प्लस फाइट, न्यू प्लस फाइट, नया और लड़ते रहना। किससे? अपनी अनर्था से, और ये मतलब आपस में। तो बट हमको उससे ऊपर उठना है। सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रूव, सब लोग कोशिश करते हैं। जो नियोफाइट स्टेज में व्हाट हैपेंस, अरे मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, कुछ होगा, कुछ अच्छा हुआ तो अरे मैंने किया, कुछ गड़बड़ हुआ तो अरे मैंने नहीं किया। प्रोजमेंट से वी हैव टू इम्प्रूव, वी डोंट हैव टू प्रूव। यहाँ पे और एक चीज़ पूछा गया था कि एक क्लीन प्लेचार्ट करके कोई बहुत फेमस बिजनेसमैन है, तो उससे पूछा कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? ही टोल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस, 2 words, बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो इसे हमको सीखना है कि साधना और हमारी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए। फिर then somebody asked, okay, how to know best practices? पहले सो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस? तो वो बताता है बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो फिर पूछा जाता है बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे आएगा? वो बताते हैं कि एक्सपीरियंस। फिर एक्सपीरियंस कैसे आएगा? तो वर्स्ट प्रैक्टिसेस। तो प्रोजेक्ट मेंशन है कि हमको अपने आप में भी ढूंढनी चाहिए कि हमारी कमी क्या है, करेक्ट ना?
हमको कंटेम्पलेट करनी चाहिए कि हमको दूसरे किसी कमियों पे फोकस नहीं करना है। हम लाइक वी आर नॉट परफेक्ट, वी हैव टू फोकस ऑन आवर डिफिशियंसी। प्रभु जी ने पूछा कि अरे कितने लोगों को लगता है कि हमारे अंदर कमी है, तो ऑफकोर्स हमको देखनी चाहिए ना कि हमारे अंदर डिफिशियंसी क्या है, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। So you was mentioning one example again कि कोई वॉइस डिवोटी था या कोई डिवोटी जी था, तो वो राधेश्याम प्रभु के पास पूछा, प्रभु उस बच्चे के साथ में ना, वो नया जो बच्चा है, मैं प्रीचिंग के लिए जा रहा था और मैं शुरू में बहुत कोशिश किया कि मैं बहुत हम्बल बनूं, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। प्रभु जी मेंशन कर रहे थे कि हम शुरू में बहुत दिखाते हैं कि हम हम्बल है, फिर बाद में हम जब एक्चुअल जब टेस्टिंग होती है उस समय वो बिकम जीरो, फिर वो गुस्सा आना चालू हो जाता है। तो वहाँ भी हमको बहुत ही सिंसियर बनना है, उसको हमको टॉलरेट करना है। तो फिर वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बताते हैं प्रभु जी की। तो भक्ति विनोद ठाकुर सेज कि वी शुड लाइक कर्व इग्नोरेंस, डिमिनिश पैशन, एनरिच गुडनेस। जो इग्नोरेंस है उसको कर्व डाउन करना चाहिए, मतलब उसको साधना से प्रैक्टिस करके। जो तमोगुण है उसको ख़त्म करना चाहिए, पैशन को डिमिनिश कम करनी चाहिए धीरे-धीरे, और गुडनेस को इंक्रीज करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। जो सुबह में हम लोग करते हैं प्रैक्टिस है उसको बढ़ानी चाहिए। और एक बीच में पॉइंट बता रहे थे प्रभु जी कि हमको सबको लव करना है। अभी सबको लव करना पॉसिबल होता है क्या? कहीं ना कहीं थोड़ा जो दुश्मन है हम उसको लव कर सकते हैं, बट प्रभु जी इज गिविंग द एग्जांपल ऑफ प्रहलाद महाराज। सोचो उनके पिताजी कितना उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, सांपों के बीच में रख देते हैं, ऊपर से उनको फेंक देते हैं, तो भी कितना वो प्रेम करते हैं अपने पिताजी से। वो बदला लेने के लिए नहीं ले भी रहे। वहाँ पे महाराज बोलते हैं, महाराज का कोट्स बता रहे थे प्रभु जी, that unless you are guided by a force which is beyond you, you will not be able to love your enemy। तो महाराज बोलते हैं कि जब तक कोई उस फोर्स से आप गाइड नहीं होते जो आपसे भी ऊपर है। लाइक प्रहलाद महाराज वाज गाइडेड बाय किनके द्वारा गाइड किया जा रहा है? नारद मुनि। सो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी हमने व्हाटएवर वी हैव डिस्कस टुडे, एंड इफ वी कंटेम्पलेट ऑन ऑल दीज थिंग्स काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो आई थिंक आज की सेशन में इतना मेरे पास, लाइक आई हैड थॉट टू स्पीक ऑल दीज थिंग्स। देयर आर मेनी थिंग्स लाइक इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेनेवर वी विल हैव इन द नेक्स्ट वीक, राइट? सो SRCGD, स्पेशली सर्विस, रिस्पेक्ट, केयर एंड डिपेंडेंसी ऑन कृष्णा एंड शास्त्र, उसमें हम एक चीज़ देखेंगे, राइट? तो ये काफ़ी बड़ा लेक्चर है, उसीलिए हमने ऐसे स्लॉट डिवाइड किया। और हमको क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी है ना, इट्स नॉट लाइक एक दिन पूरा फिनिश करना। सो दिस वाज ऑल इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।